Hello everyone and welcome to the session of operator precedence. So this is a very important topic in computer science and several questions are being asked from this topic. So we must have an awareness about this topic. आप सभी मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर फॉलो करने के लिए unacademy.com/@jainamita। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/jainamita। This is my email address, this is my YouTube channel and this is my Facebook page for the latest updates and the notifications. तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो देखिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस में क्या होता है, whenever all the operators occur together in an expression, then what is the problem? The problem is that which operation should be carried out first, right? Suppose अगर लिखा हुआ है a plus b into c, so the problem is this, which should be carried out first, either b into c or a plus b. So basically ये चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है? It depends upon two things. One is the precedence and second is the associativity. One is the precedence and second is the associativity on which this particular thing depends. So what do you mean by precedence? Precedence here in this example means, first of all we have to calculate b into c and then we have to add this by the help of this. a में add करेंगे फिर हम b into c की वैल्यू को। तो कहने का सिंपल सा मतलब क्या है? Multiplication is having higher precedence than addition, so that's why we have first of all calculated b into c और फिर हम किसको ऐड करेंगे? उस जो वैल्यू आएगी उसको a में ऐड करेंगे। तो इसे तो हम बोलेंगे प्रेसिडेंस। जब हम बात करते हैं एसोसिएटिविटी की, सो व्हेन यू हैव ऑल द ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रेसिडेंस, देन विच वन शुड बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट। अब सभी ऑपरेटर मान लीजिए सेम प्रेसिडेंस के हैं, तो फिर पहले किसको यूज करेंगे, बाद में किसको यूज करेंगे? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So when you have various operations in an expression, then if all of them are of various precedence, then what we have to do is this, we have to take one with the highest precedence and then evaluate it. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा है लेफ्ट टू राइट, तो इस तरह से हमने देख रखा है कि ये सारे ऑपरेटर्स हैं। अब इन ऑपरेटर्स में हमको कैसे चलना है? लेफ्ट टू राइट चलना है। और ये जो लिखा है 1 2 3 4, ये सब क्या है? प्रायोरिटीज हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी है, सेकंड इसकी, थर्ड इसकी, फोर्थ इसकी। सो लाइक दिस वी हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज। सो द वे इन विच ऑपरेटर्स आर अरेंज्ड इन रोज शोज इट्स प्रेसिडेंस। सिंपली जैसे 1 2 3 4 5 6 है, तो हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट रो है इसे मानेंगे कि इट इज हैविंग द हायर प्रेसिडेंस, then second row is having less precedence, third row की उससे भी कम precedence. So like this 15 तक हम देखेंगे, जो 15th है उसकी क्या होगी? सबसे कम precedence होगी accordingly. So when we are going down, the precedence is decreasing, and when we have operator of the same precedence, then we see for the associativity. तो इसे हम क्या बोलेंगे? Which is referred like here we can say it is from left to right or it is from right to left. उसके ऊपर एसोसिएटिविटी आपकी डिपेंड करेगी, राइट? तो प्रेसिडेंस हो गया 1 2 3 4 5 6 जो हमने लिखा है, ये प्रायोरिटीज की बात होगी, ये हो गया प्रेसिडेंस। और एसोसिएटिविटी अगर सभी सेम लेवल के हैं तो फिर हम क्या करेंगे? कैसे चलना है हमको? लेफ्ट टू राइट चलना है या राइट टू लेफ्ट चलना है, वो यहाँ पे डिपेंड करता है। सपोज अगर मैंने बोला आई हैव टू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लाइक लेफ्ट एसोसिएटिव, तो लेफ्ट एसोसिएटिव का मतलब ये होता है कि व्हेन वी हैव अ बिग एक्सप्रेशन with all the operators of same precedence or either two or more operators of the same precedence, then we have to evaluate it from left to right. Okay? और अगर लिखा है right to left, तो हमें उसे कैसे ऑपरेट करना है उसके ऊपर? from right to left. तो ये हमेशा डिपेंड करेगा कि कैसे आपको चलना है, राइट? अब देखिए हम शुरू से एक एक एक्सप्रेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले जो देख रहेंगे हम, इट इज योर दिस, yes, so it is first is this one. तो इसे हम बोलते हैं this is a function call और for expression with the highest precedence, इसकी highest precedence है। This second one
इज बेसिकली यूज्ड फॉर एरे इंडेक्सिंग. ये हम यूज करते हैं एरे इंडेक्सिंग के लिए. ओके, एंड दिस वन बेसिकली ये वाले और ये, इन दोनों को हम किसके लिए यूज करते हैं? टू एक्सेस द मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर ऑपरेटर्स. Like for the unary operators, we can say that we have these particular various kind of the operators. अगर जैसे हमने लिखा नॉट, तो नॉट किसके लिए है? वैल्यू रिवर्ट करने के लिए. इसे हम बोलते हैं लॉजिकल नॉट. 1 का 0 और 0 का 1. ठीक है, ये किसके लिए होता है? दिस इज फॉर वंस कॉम्प्लीमेंट. दिस इज फॉर वंस कॉम्प्लीमेंट. एंड दीज टू प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, These are basically increment and decrement operators. और जो आपके प्लस और माइनस हैं, they are unary plus and the minus operators. ओके, तो ये इस तरह से आपके यहाँ पे यूज में आएंगे. एंड समटाइम्स वी कैन से सेम सिंबल इज यूज्ड इन टू प्लेसेस, like where one is unary and other is binary. So to distinguish between them, it depends upon the context. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बोला है कि प्लस इज यूज्ड ओनली विद वन ऑपरेटर और ऑपरेंट, तो वो क्या हो जाएगा? यूनरी हो जाएगा. अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? बाइनरी हो जाएगा. सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे देखा है स्टार, तो ये जो स्टार है ये किसे रिप्रेजेंट करता है? द स्टार इज रिप्रेजेंटिंग योर पॉइंटर इन डायरेक्शन. ओके, दिस इज रिप्रेजेंटिंग पॉइंटर इन डायरेक्शन. And this is representing ampersand, which is your address operator. तो address operator क्या होता है? Where you can find address of an element in memory using this particular operator. तो उसे हम बोलेंगे address operator. Then we have type. तो type is basically for typecasting. Like typecasting को हम बोल सकते हैं changing the variable from one type to another type. That is the utility of the type operator. And then we have the size of. तो ये जो size of है, it is basically used to get size of the element. And they are all right to left associative. ये जो हैं ये आपके सारे क्या हो जाएंगे? These are right to left associative. तो ये सारे होंगे आपके right to left associative. ओके, तो आपके इन सब के सामने मैंने लिख रखा है कि कौन सा लेफ्ट टू राइट है और कौन सा राइट टू लेफ्ट है. फिर इसी सीरीज में आगे देखेंगे वी हैव दिस. तो दिस इज योर multiplication, this is division, this is modulus. So they are having higher precedence than plus or minus, which are also the arithmetic operators. तो ये सब हमारे कौन से operators हैं? These are all the arithmetic operators. Okay. And then comes the shift operator. So this is left shift and this is your right shift. And we normally say them as your shift operators. इनका नाम है, these are said to be as your shift operators. Then we have the relational operators, less than equal to, greater than equal to, is equal to and not equal to. तो ये सारे हमारे relational operators and equality operators हैं जिसे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, basically used for the comparison purposes. Then we have the bitwise AND operator. Okay, and this is bitwise और हम इसे बोल सकते हैं exclusive और bitwise और इसे हम बोल सकते हैं bitwise inclusive or. तो ये इन दोनों में डिफरेंस है. दिस इज exclusive or and this is inclusive or. And this is logical AND operator. Logical AND operator जो हम यूज करते हैं like 1 into 0 is 0 and 1 into 1 is 1 and all. So this is logical AND and this is logical OR operator. Then this is your ternary operator जिसे हम conditional operator या फिर ternary operator बोलते हैं, which is used for the comparison purposes. कब use आता है ये? When we can write when we have to write bigger expression in more compact way, then at that time we are using this ternary operator. And then we have this assignment operators like equal to, plus equal to, minus equal to and all. तो ये सब हमारे assignment operators हैं. तो देखिए जो conditional operator है, this is again from right to left और assignment operator भी होते हैं हमारे right to left and last में है comma operator.
तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ये ध्यान रखना होता है, पहली चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो हमें ध्यान रखना होता है प्रायोरिटी ऑफ द प्रेसिडेंस। ओके, और जो सेकेंड चीज आपको ध्यान रखनी होती है वो ध्यान रखनी होती है आपको एसोसिएटिविटी। अगर आपको किसी की प्रायोरिटी पता है, प्रेसिडेंस पता है, फिर भी ये पता करना होगा कि एसोसिएटिविटी कैसी है, लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है, किस तरह से इसकी ये होगी। और जो नॉर्मली क्वेश्चंस इसके अकॉर्डिंगली हमेशा पूछे ही जाते हैं, कई बार क्वेश्चंस आते हैं यू हैव टू इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन, और जब आपको कोई एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करना है तो आपको इसका बिल्कुल आइडिया होना चाहिए। इवन इफ यू आर फेसिंग सम ऑफ द इंटरव्यूज, तो इंटरव्यू के अंदर भी आपको ऐसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। आप चाहें तो माइंड मैप्स के हिसाब से यू कैन इजीली रिमेंबर सच थिंग्स लाइक हाउ यू कैन रिमेंबर द प्रेसिडेंट्स। तो आप इसकी कोई भी शॉर्टकट ट्रिक बना सकते हैं सो दैट इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। और ये तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रख ही सकते हैं दैट फॉर दिस conditional and assignment we have the associativity from right to left, और बाकी सबके लिए associativity होती है from left to right। ओके, और इनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हमारे आगे आने वाले वीडियोस में, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये इन ऑपरेटर्स का क्या यूज है एंड हाउ वी आर बेसिकली यूजिंग सच ऑपरेटर्स। ओके, तो मेरे हिसाब से इट इज क्लियर नाउ। सो थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।